Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, King of glory. We praise your name, glorify you, Lord. Hallelujah. We bless you and glorify you. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो. Hallelujah. गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी तुझको कबूल था मैं। आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए दुआ मांगें। जीसस, वी मैग्नीफाई यू। You are so precious, Lord, beyond anything else in this universe. You are so precious. You are so dear, Lord. You are so darling. You are so awesome. You are so amazing. You are so wonderful, Lord. There is none like you. There is none besides you. In heaven above, your name is so glorious. And upon the earth and beneath the earth, Lord, magnanimous is your name, Lord. We proclaim your majesty. We proclaim your splendor. We proclaim your glory, Lord. Hallelujah. We just preach your goodness and your love. Hallelujah. Your loving kindness, blessed and glorious. Lord Jesus, hallelujah. We exalt you. Lord Jesus, we exalt you. Lord Jesus, we exalt you. Lord Jesus, precious Jesus, we exalt you. Hallelujah. Lord, we pray that this morning your presence will flow upon us. Hallelujah. आइए हम सब मिलके कुछ प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करें. Lord, I pray for these prayer requests that have come from Britain. I pray for Sunita Kaur, Lord, and her daughters. I pray for Samantha and Sonia and Karuna, Reena, Angela and Raj, Lord. I pray that your Spirit will move in this family. Lord, that your true word, that your true oracles, Father, will be proclaimed to this family. They would know you as you are. They would know your glory, your majesty, and your splendor, Father. Father, that the right seed of the word of the Lord will be planted in the soil of their heart, Lord Jesus. Also, I pray for Devinder Kular from Britain, and I pray for her husband Paramjeet, Lord. I speak healing anointing over him. Lord, I pray that you would deploy angels around him. Lord, I speak breakthrough in his life in the mighty name of Jesus of Nazareth. And their children and their household I cover under the blood. Father, I pray for Taljinder as the prayer request is sent. I pray for her healing in the mighty name of Jesus. Touch Taljinder Kaur and heal her, Father. And I pray for Brother Lalit Mehra in Delhi. Lord, I pray for his father-in-law. I pray for Lalit Mehra, Lord, that you will heal him. Lord, that this fever that is recurring, this fever will leave his body in the mighty name of Jesus. And Lord, you will raise up his father-in-law also from the bed of sickness in Jesus' name. Lord, I pray for Urmila Devi. I pray that you will bless her, her family, and also in Himachal Pradesh, Lord,
that your Spirit will move, Lord, in the name of Jesus. I pray for Neelam Valley also from Britain, and for our son, Naresh, Lord, that your Spirit will move. Thank you for healing Sylvanus. Thank you for blessing Ignas Lal. Bless her and her husband, Father. Hallelujah. Ruby Sanghera, Lord, I commend her into the name of the Lord Jesus of Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth, under the covering of the blood of Jesus. And I pray for Kulwant Singh, that his kidney will be healed. Sahil's father in Pakistan, I speak healing, Lord. For Juginder Kaur, I speak healing. For Sabi Surjit, for Kundan Shah, for Minu Sood and her family, I speak healing, Father. Father, I pray for your blessing over Brother Eric Devan and his father, Mr. James. Bless him, Lord. I pray. Gaurav Samuel from Chandigarh, speak your blessing. Malkiyat Gill and his family, I speak your blessing, Lord. I pray for Darshan Singh from Jalandhar and his household. Harpal Singh Bajwa, Lord, that this man's petition will ascend heaven. You will answer him as he aspires to go to Italy. Father, door will open up for this man in the name of Jesus. I pray for Amarjit Kaur from Jalandhar and her household. I speak blessing, Father. I speak blessing over Brother Amrish Kumar. Bless this man of yours. Bless Pastor Satpal Singh and his sons and his family, Lord. Hallelujah. Tera lahu chirkta hu. I also pray for Vijay Masih Khosla for your blessing. I pray for Anju Masih from Britain, that you bless her, Father. Bless her household in Jesus' mighty name. Richa Masih, the Lord blesses you. The Lord blesses your mom and dad. The Lord gives you direction and leading and guidance, that the Holy Spirit will navigate your path, that the forces of darkness will not be able to defeat you, that your youth will glorify the Lord. Hallelujah. And I pray for Sam Pastor, for your blessing and anointing, Father. Use him in Chandigarh. For Monica Christian and her family, for her daughter Parita and her son, Father, I speak blessing. I pray for Komal Masih and her husband Simon Masih and their children. I cover them under the blood of Jesus, Lord. I pray for her father Ratan and her brother. I speak healing over the entire household. खुदावंद, मैं जसवीर सिंह सुरिंदर के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आपके खून में उन्हें छिपाता हूँ खुदावंद. I also pray for Anil Kumar from Britain. I speak your blessing and favor and anointing over each and every one. Pray for Avatar Burjman, Father, from Chandigarh. Pray for his sister as they travel. I speak traveling and journey mercies over them. And for this young man, Avatar, that you lead him and guide him. I bless Manish Lokhande, that your hand be upon Brother Manish Lokhande. Hallelujah. Davinder Singh, भाई खुदावंद आपको बरकत दे, जम्मू कश्मीर में अपने पंखों के नीचे रखे. Mahir ji, आपको खुदावंद बरकत दे यीशु मसीह के नाम में. I bless my mother Leela Devi also. Cover her under the blood. I bless Sonia Nar. May the hand of the Lord be upon Sonia Nar. Hallelujah. Thank you, Father. Father, मैं लालमन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो कैंसर फ्री हो जाए यीशु मसीह के जलाली नाम में. खुदावंद, आज सुबह अपना दिन तेरे कदमों पे रखते हैं, अपना दिल तेरे कदमों पे रखते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद, तेरे नाम की सिफत बुलंद करते हैं. तू जलाली है खुदावंद. हालेलुया. तू कुव्वत से भरा है खुदावंद. रॉबी जॉन को और जो मिनिस्ट्री भाई करता है, उनके पिता माता सबको, और भाई खोखर भाई को जो इटली में खुदावंद तेरे खून में छिपाता, उनके घराने को बरकत दीजिएगा खुदावंद जी. हालेलुया. अपने लहू में छिपाइएगा. थैंक यू जीसस. खुदावंद, तेरे कलाम पे जब हम मनन करें, हालेलुया, तेरा रूल कुद्दस हमारे से बातें करे खुदावंद, और तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. हम इज़राइल की हिस्ट्री में से कुछ बातें सीख रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. परमेश्वर के पास बहुत कुछ है हमें सिखाने के लिए उसके कलाम में. मैंने आपको जैसे बताया है, परमेश्वर की सॉवरेनिटी, परमेश्वर की परफेक्ट सिद्ध कामिल इच्छा क्या होती है, और मनुष्य को जो उसने स्वतंत्र इच्छा दी है उसका परमेश्वर सम्मान करता है. मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्रभु के चरणों में नहीं रखता. मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ड्रीम देखा था, मेरे जीवन का ड्रीम. शायद उस समय मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं.
कि उस दिन हमारे घर में मेहमान आए, पूरे दिन में 2 या 3 बार आए। तो हम अपने पुराने घर में रहते थे, मेहमानों को हम सुबह आए, शायद लुधियाना से, कुछ अमृतसर से आए, नंगल से आए। सुबह आए, उनको हमने, मेरी माता ने, हमने सी ऑफ किया। सामने हमारे घर से थोड़ा दूर बस स्टैंड था, तो जाते समय वो मुझे 10 रुपये या 20 रुपये देकर गए। फिर दूसरे मेहमानों के सेट को किया, उन्होंने भी 10 या 20 रुपये दिए। फिर दोपहर के बाद तीसरा एक सेट आया, उनको भी जब हमने सी ऑफ किया, उन्होंने भी मुझे 20-30 रुपये दिए। मैंने मुझे याद है, छोटी सी शॉर्ट निक्कर पहनी थी, उसकी जेब में मैंने पैसे रखे, और उस समय मेरे लिए 50 पैसे बहुत काफ़ी थे, पॉकेट मनी दिन की। तो वो 50-60 रुपये थे। मुझे वो ड्रीम प्रभु ने याद कब दिलाया, जब मैं मसीह में आया और मैं दिल्ली में उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन के उपवास में बैठा था और प्रार्थना कर रहा था अपने जीवन साथी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए। तो जब 3 दिन गुजरे तो परमेश्वर ने मुझे, मैं दोपहर को सो गया प्रार्थना करके। जब मैं सोया तो मेरे से प्रभु बातें कर रहा है। मैं जैसे एक रोशनी में किसी एक बुज़ुर्ग को खड़े देख रहा हूँ, मुझसे बोल रहा है कि तू मुझसे कह रहा है कि किसे मैंने चुना है तेरे लिए, जिससे तेरी शादी हो। देख तेरे जीवन में, तेरी सेवकाई में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनमें से एक को चुन और शादी कर ले। प्रभु ने मेरे को ड्रीम में ये बात कही, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जगा तो मुझे लगा कि ये प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। मैंने ड्रीम को डांटा भी, क्योंकि मैं बहुत उसे स्पिरिचुअलाइज कर रहा था कि ऐसे होगा, ऐसा साइन मिलेगा, ऐसा एक निशान मिलेगा, फिर वो आएगी जिससे मेरी शादी होगी, कुछ ऐसा। खैर, उसके बाद मैंने फिर उपवास रखे 1 वीक के बाद। तो मैं फिर दिल्ली में था, सफदरजंग एनक्लेव के पास, मैं उपवास में था। दोपहर को मैं सोया, मुझे ड्रीम आया। वो ड्रीम आया जो मैंने उस दिन हमारे, और उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने अपनी जेब में डाले। जब देख रहा हूँ, एक्चुअली वो सच्ची, मैंने घर आके वो सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए कि ये आप रख लो। तो मेरी माँ ने बोला ये तो तुम्हें दिए उन्होंने। मैंने बोला दिए तो मुझे हैं तो मेरे हैं, लेकिन आप रख लो, मुझे इन्हें हैंडल करना। मैंने दिल में सोचा कि मुझे इन्हें हैंडल करना नहीं आता। तो प्रभु ने वो ड्रीम दिया, मैं जग गया। जब मैं जग गया, मैं प्रार्थना करने लगा, मुझे समझ आ गई वो थे मेरे पैसे, मैंने अपनी माँ के हाथ में सौंप दिए, क्योंकि मैंने ये सोचा मेरी माँ के पास मुझसे ज़्यादा समझ है, मुझे इनके उपयोग करने की पूरी समझ नहीं है। तो प्रभु ने मुझे बताया सीक्रेट क्या है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, हम डेली परमेश्वर को रिटर्न करते हैं फ्री विल। प्रभु ऑनर करेगा अगर हम फ्री विल यूज़ करके कोई डिसीजन अपने जीवन में लें। बट वी टेल गॉड वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग the gift of making our deliberate choices. We rather surrender at your altar the gift that you gave us, and we want you to make us run in your perfect plan. मैंने आपको बताया कल कि माँ की कोख में जब पिता और माता का मिलाप होता है तो कतूबा होता है अंदर, कतूबा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है सीड का, पिता के क्रोमोसोम ऑटोसोम का, माता के क्रोमोसोम ऑटोसोम का, आपस में कतूबा होता है और एक रोशनी आती है अंदर। फिर मैंने बताया कि वो जो ओरिजिनल पिता का अंश जाता है और ओरिजिनल माता का अंश जाता है, वो कॉन्ग्लोमरेट हो जाते हैं एक सेल के अंदर, और वो सेल और सेल बनाने लगता है। लेकिन जो ओरिजिनल सेल होता है पिता की ओर से और माता की ओर से गया होता है, उस ओरिजिनल सेल के डेवलप होने से हार्ट बनता है, बंदे का हार्ट, दिल वो बड़ा होता है, विकसित होता है और वो हार्ट बनता है। आपके हार्ट के अंदर आपकी पूरी जेनेटिक हिस्ट्री है, इसीलिए आप बनना चाहता है। आपके हार्ट में, आपके दिल में सबसे बड़ा वरदान है स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करने का। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करें। मेरे पास अभी स्वतंत्र इच्छा है, मैं यहाँ पे आपको वचन सुनाने के बाद, गहरी आत्मिक बातें सुनाने के बाद अपने घर से बाहर निकलूं, एक गलत औरत के साथ जाके व्यभिचार करूं। यहोवा परमेश्वर मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ा के मेरी टांग नहीं तोड़ेगा। उसने जो गिफ्ट दिया है फ्री विल का, उसका सम्मान करेगा।
आप उसे कभी भी एनकैश कर सकते हो। ये एक ब्लैंक चेक है। लेकिन सीक्रेट क्या है? मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब वो दोनों सीड माँ की कोख के अंदर एम्ब्रियो फीटस बनता है, कटुबा होता है अंदर, और अंदर कटुबा होता है, सेलिब्रेशन होती है और रोशनी यहोवा के अंदर जाती है। उसी समय स्वर्ग से स्पिरिट मैन, वो जो दोनों जिनोम मिलते हैं ना, जो अलग हो जाते, कॉन्ग्लोमीरेट हो जाते हैं एक सेल के अंदर, जिनसे हार्ट बनता है, ऊपर से स्पिरिट मैन आके उसे रैप करता है। जो स्वर्ग से स्पिरिट मैन आता है उसके अंदर ऐसे एक स्क्रोल होता है, स्वर्गीय स्क्रोल, जिसमें आपके जीवन की सारी बातें लिखी होती हैं। लेकिन एक स्क्रोल आपको आपके पिता से, पिता के जिनोम से, आपकी माता के जिनोम से, आपकी माँ की कोख में एम्ब्रियो में है ऑलरेडी एक स्क्रोल। उसके ऊपर एक और स्क्रोल आके लिपटता है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। एक आपके डीएनए के अंदर आपके पुरखों की करनियों की पुस्तक है, एक ऊपर से आके स्क्रोल चिपकता है जो यीशु मसीह कहते हैं मेरे जीवन की सारी बातें तेरी किताब में, सफर में लिखी गई हैं। यीशु मसीह उस स्क्रोल से चला जो स्वर्ग से उतरा यहोवा की ओर से। शैतान आपको डिफॉल्ट मोड में चलाता है, जो आदम के जेनेटिक आपको मिले हैं उसका जो स्क्रोल है उसमें चलाता है। सीक्रेट है कि हम अपनी स्वतंत्र, हमारा जो हार्ट है, क्यों इसके ऊपर, इसके लिए वॉर चल रही है अनसीन रेल्म में। शैतान इसे चाहता है, यहोवा ने इसे अपने लिए बनाया है। तो हम देखते हैं इज़राइल की हिस्ट्री में क्या है, गलत चॉइसेस। मैंने आपको बताया राज्य टूटा क्यों? सुलेमान के पाप और बदकारी के कारण। सुलेमान ने बहुत विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, अकल्टिज्म किया, जिसके विषय में आप बड़े ध्यान से ढूंढेंगे तब पता लगेगा। और उसने 1000 औरतें ब्याईं, उनके देवी देवताओं की उपासना की, मंदिर बनाए। सबसे ज़्यादा क्रोध उसने यहोवा को दिलाया जब उसने यहोवा के भवन के सामने बाल मोलक की मोश के मंदिर बना दिए। और उसके पाप के कारण इज़राइल का राज्य फट गया 2 हिस्सों में। तो जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है वो कुछ और है। परमेश्वर की सॉवरेनिटी में जो परमेश्वर ने योजनाएं आपके लिए बनाई हैं वो वंडरफुल हैं। यिर्मयाह 29:11 में यिर्मयाह कहता है कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं, जो प्लान्स मैंने तेरे लिए सोचे हैं, जो एजेंडास तेरे जीवन के लिए मेरे दिल में हैं, दे आर एब्सोल्युटली ग्लोरियस। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। लेकिन आपके जेनेटिक्स के अंदर जो पुराना स्क्रोल है वो स्क्रोल हावी हो जाता है नए स्क्रोल के ऊपर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जो डिसेंड करती है स्वर्ग से डायरेक्टली, उसको टैप नहीं कर पाते। तो सीक्रेट क्या है कि आप सरेंडर करें डेली अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रभु, उसे कहें मैं नहीं करूंगा प्रभु जी आप कीजिए ये मेरे लिए। मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिया था फ्रीडम कि मैं किससे शादी, और मैं बहुत कंफ्यूज हुआ उसमें। पता नहीं 50 नबियों ने भविष्यवाणी की मेरे लिए, इससे तेरी शादी होगी, उससे तेरी शादी होगी, उससे नहीं हुई। आपको नबियों के द्वारा यहोवा चलाए, ये यहोवा की प्लान नहीं है। यहोवा की योजना आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए। यहोवा आपको विजडम दे स्वर्ग से, वो विजडम आपके जीवन को चलाए। समझ रहे कितनी बड़ी डिसेप्शन है? नबियों के पीछे भाग रहे हैं लोग, प्रोफेसर पापा, प्रोफेसर पापा, क्योंकि अंदर से खोखले और खाली हैं, यहोवा के संग कोई रिलेशनशिप नहीं है। और प्रॉफिट हैं ऐसे जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते हैं ना विदेशों में, वहाँ पे आप खाना खाओ, आपको चाइनीज़ फॉर्चून कुकी देते हैं। कुकी को खोलो, उसके अंदर लिखा होता है आपके संग ये होने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है। तो लोग वो फॉर्चून कुकी के अंदर ना छोटा सा पेपर होता है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, उसको इकट्ठा कर करके रखते हैं। आपको ये कलाम के अनुसार चलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कुछ राजों के विषय में मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ इज़राइल और जो बाइबल की आखिरी पुस्तक, इसका क्या संबंध है प्रकाशित वाक्य का। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ घट रहा है इसकी जड़ है पुराना नियम। ढूंढें। अभी मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ दूसरा राजा, उसका 21 अध्याय निकाल लीजिए। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 21 अध्याय। हालेलुया।
दूसरा राजा की पुस्तक उसका 21 अध्याय, और सुनिए मेरे संग। मनस्से वॉज 12 years old when he began to reign, and 55 years in Jerusalem, and his mother's name was Hephzibah. एक राजा है, इसका नाम है मनस्से, इसने 55 साल राज किया है। बहुत लंबा स्पैन है। ये मत सोचिएगा कि लंबी उम्र जो है यहोवा की बरकत की निशानी है, कई बार ऐसा नहीं भी होता। ये विकेट राजा है, दुष्ट राजा है, और बहुत लंबे समय ये राज कर रहा है। आपको मालूम, परमेश्वर बुरे राजा दुनिया के देशों को इसलिए देता है क्योंकि उनका न्याय करना चाहता है। बुरे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग अलग देशों को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर उन राष्ट्रों से, उन देशों से खफा है और उनके ऊपर जजमेंट भेजना चाहता है। और आपको मालूम, सुन लीजिए ध्यान से, आपके जीवन से अगर परमेश्वर अपने सच्चे दासों को बाहर लेके जा रहा है तो इसका मतलब है वो आप पे सजा भेजने का मन बना रहा है। जब तक प्रभु के सच्चे सेवक, सच्चे नबी, सच्चे प्रेरित, सच्चे दास आपके जीवन में होंगे, यहोवा आपको सजा नहीं दे सकता। और कई बार आपके घमंड का घड़ा प्रभु ने पूरा भरना होता है, इसलिए वो सच्चे सेवकों को निकाल के ले जाता है। जब तक वो हैं तब तक दंड नहीं आ सकता। इज़राइल में झूठे नबी थे। जिदकिया आखिरी राजा था सदरन किंगडम का। जिर्मिया उस समय भविष्यवाणी करता है। जिर्मिया कहता है नबूकदनेस्सर आ रहा है, तुम्हारे काम बहुत गंदे और घिनौने हैं, तुमने बदकारियां की हैं, तुमने यहोवा को क्रोध दिलाया। वो राजा को भविष्यवाणी करके कहता है अपने आप को बाबुल के राजा के हवाले कर दो। तो जिदकिया के महल में झूठे नबी हैं, वो जिर्मिया से लड़ते हैं। आपको मालूम, उन नबियों ने, याजकों ने जिर्मिया को फंसाने के लिए कितने षड्यंत्र बनाए। जिर्मिया को दलदल के अंदर गिरा दिया था, कुएं की दलदल में, वो मर जाता वहाँ पे, यहोवा ने उसे बचाया। राजा को झूठे नबी कहते हैं हम तो यहोवा की संतान है, यहोवा तो हमारे साथ है, हमारा पास तो हैकल है, हैकल में तो यहोवा की हजूरी है, अहद का संदूक है, शत्रुओं को कैसे यहोवा आने देगा, खतरा रहित लोग हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते। ये नबी झूठा है, ये देखो शैतान की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा था सरेंडर कर दो तो बच जाओगे। इन्होंने यिर्मयाह की बात नहीं मानी। नबूकदनेस्सर 3 बार उसने अटैक किया यरूशलेम पे। तीसरी बार शहर को जला दिया और यरूशलेम की हैकल को तोड़कर लूट के ले गया। याजकों को ये घमंड था, हैकल में ये जो ऐद का संदूक है इसके ऊपर यहोवा विराजमान है, उसका जलाल उठेगा, यहोवा आकाश से बिजली कड़कड़ाएगा, थंडर बोल्ट आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, यहोवा आकाश से गरज के मार डालेगा दुश्मनों को। ऐसे मारता था यहोवा पहले, लेकिन अब नहीं मारेगा क्योंकि पाप में अकंठ डूबे हो, पाप में डूबे और गीत गाते हो, जंग जिना दी लड़दा यहोवा। पाप की दलदल में धंसे और गीत गाते हो, चुपचाप खड़े रहो, ऐसा नहीं होगा। जिर्मिया ये भविष्यवाणी करता रहा। जिर्मिया की एक एक भविष्यवाणी सच्ची हुई। उसको जेल में डाला गया, उसको सूखे कुएं में, डंजन में डाला गया, उसकी जिल्लत की गई, उसको मारना चाहते थे लोग। जिर्मिया भविष्यवाणी करता रहा, लेकिन झूठे नबी जिदकिया को 3 बार आया नबूकदनेस्सर 3 सालों में। जिर्मिया हर बार कहता था उसको टैक्स दे दो, उसको अधीन हो जाओ। झूठे नबी कहते थे हम नहीं होंगे अधीन, हम तो यहोवा की संतान हैं। 3 अटैक हुए, सारे इज़राइल को गुलाम बना के ले गया, क्योंकि जिर्मिया की बात नहीं मानी उन्होंने, झूठे नबियों की बातें सुनी। तो ये जो राजा है मनस्से है, सदरन किंगडम का, यहूदा का राजा। और लिखा है ही डिड, दूसरा वचन, ही डिड विच वॉज ईवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड आफ्टर द अबॉमिनेशन ऑफ द हीदन्स। उसने अन्य जातियों के पाप और गंदे काम किए, अन्य जातियों के जैसे गंदे काम किए। whom the Lord cast out before the children of Israel। वो अन्य जातियाँ जिनको यहोवा ने इसराइलियों की मिरास में से धकेल के निकाल दिया। हित्ती, जबूसी, गिरगासी, कसदी, कनानी, ब्रिजी, गंदी कौमों के जो नफलीम थे, मिक्स ब्रीड के लोग थे, जो गिराए गए दूतों की पूजा करते थे, उनको निकाला। उनकी गंदी प्रैक्टिसेस, अशेरा, मोलक, किमोश, बाल पराजीम, बाल पियोर, इनकी पूजा किया करते थे। वो देवियों की पूजा किया करते थे, अश्तरोत की, डायना की,
क्वीन ऑफ हेवन की, सूर्य देवता की, शिमेश की उपासना करते थे। उन्हें जानवरों का लहू चढ़ाते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, मूर्तियों के आगे अपने कपड़े उतार के नंगे होकर नाचते थे, और फिर मूर्तियों के आगे औरतें और मर्द गंदे काम जनाकारी करते थे। ये काम करने वाली कौमों को यहोवा ने निकाला था, लेकिन इस राजा ने उन्हीं कौमों के गंदे काम किए। और लिखा तीसरे वचन में, ही बिल्ट अप अगेन द हाई प्लेसेस, ऊंची जगहें बना दी उसने, विच हिजकाया हिज फादर हैड डिस्ट्रॉयड। उसका पिता हिजकिया बड़ा अच्छा राजा था। उसने दुआ मांगी खुदा के आगे, खुदा ने बोला तू ख़त्म है तेरा टाइम। वो फूट फूट के रोया दीवार की ओर मुंह करके। वो दीवार है यरूशलेम की दीवार, जिसे कोटिल कहते हैं, वेलिंग वॉल। उसकी तरफ मुंह करके यहोवा की ओर विलाप किया उसने। वो प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। उसे पता था यहोवा के आगे प्रार्थना कैसे करना है, यहोवा की स्तुति कैसे करना है। यहोवा ने 15 साल बढ़ा दिए, लेकिन उसे वो 15 साल बढ़वाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसी 15 बड़े सालों में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और ये बेटा जन्मा, दुष्ट बेटा जिसका नाम मनस्से है। पिता बहुत अच्छा है, लेकिन पुत्र दबा के राज्य के बदकार है। और लिखा है उसके पिता ने जो जो डिस्ट्रॉय किया था उसने दोबारा बनाया। बिल्ट अप हाई प्लेसेस विच हिज फादर हिजकिय्याह डिस्ट्रॉयड, ही रियर्ड अप ऑल्टर्स ऑफ बाल एंड मेड ए ग्रोव, एज डिड एहव किंग ऑफ इजराइल, एंड वर्शिप्ड ऑल द होस्ट ऑफ हेवन। आकाश के तारों की भी पूजा की, राशि फलों को पूजा, एंड सर्व्ड देम, और ना पूजा की बल्कि उनकी सेवा की। जो काम गंदे घिनौने किसने किए? इज़ाबेल ने और अहाब ने किए। में मैं यही, नॉर्दर्न किंगडम का पतन तो हुआ इन कामों की वजह से। सदर्न का कैसे हुआ वो मैंने कल आपको के कारण, अभी आज और देखेंगे उसके विषय में। तो ऑल्टर्स इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भवन में ऑल्टर बनाई शतानी, ऑफ विच द लॉर्ड सेड इन हैकल के अंदर रखूंगा। Altars and high places for demon deities, and there they began to do obeisance to them, oblations to them, and serve them and give them sacrifices and offering. तो आगे क्या लिखा है? And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. यहोवा के आंगनों में भी उसने शैतानों की पूजा के लिए जगह बनाई। And he made his son, छठा वचन पढ़ें, and he made his son pass through fire, आग में से अपने बच्चों को निकाला, एंड ऑब्जर्व टाइम्स एंड यूज एन्चांटमेंट, जादूगरी, टूना, फाल, पुच्छें लेना, सारे काम उसने किए। डेल्ट विद फेमिलियर स्पिरिट, गंदी रूहों से उसने बातचीत की। विजर्ड, जादूगरों, टूने करने वालों को बुलाया। ही रॉट मच विकेडनेस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड टू प्रोवोक हिम टू एंगर, दबा के उसने बदकारी की, बुरे काम किए और यहोवा को क्रोध दिलाया। और क्या लिखा है? एंड ही सेट ग्रेवन इमेज ऑफ द ग्रोव he had made in the house which the Lord said to David and Solomon his son, in this house in Jerusalem which I have chosen out of all the tribes of Israel will I put my name forever. वो जगह जहाँ करूबों पे यहोवा परमेश्वर विराजमान था, उस जगह को गंदी घिनौनी मूर्तों से, ग्रोव से, श्राइन से, हाई प्लेसेस से, शैतानी ऑल्टर से, जगवेदियों से भर दिया। वहाँ पे जादू टूना होने लगा, शैतानी काम होने लगे, तारों की उपासना और अन्य जाति के देवी देवताओं के लिए श्राइन्स बना दी गई, जगह बना दी गई। हर तरह की जादूगरी, हर तरह का टूना, हर तरह की फाल, हर तरह का गंदा घिनौना काम वहाँ पे होने लगा। Neither will I make the feet of Israel move any more out of the land which I gave their fathers, only if they observe to do according to all that I have commanded them, according to the law of my servant Moses. But they hearkened not, and Manasseh seduced them to do more evil. Then did the nations whom the Lord destroyed before the children of Israel. देखें, मनस्से ने ये सारे गंदे काम किए, यहोवा को क्रोध दिलाया। अब देखें इसके 9 वचन में क्या लिखा है। यहाँ लिखा मनस्से ने वो काम किए जो अन्य जातियाँ भी नहीं करती थी, जो हित्ती, जबूसी, कनानी, गिरगिसाइट, अकेडियन, कसदी, उग्रेटिक, ये लोग भी नहीं करते थे। मिस्री भी जितने गंदे घिनौने जादू टूने के शैतानी काम नहीं करते थे, वो मनस्से ने किए। और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने देवता को अपने बच्चे चढ़ाते थे, तो फेथ की वैली में, खैर आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और जोर जोर से ड्रम बजाते थे। एक देवता था, उसके हाथ ऐसे, हाथ के अंदर हॉलो थे, बीचे लोहे के हॉलो थे, पाइप लगी थी, उसके अंदर अपना बच्चा डाल देते थे पहलौठा, और उसके पेट में आग जलती थी, बाहों में से सरक के बच्चा पेट में जाता था, बिलबिला के जिंदा आग में जल जाता था, और जोर जोर से ड्रम पीटते थे ताकि बच्चे के रोने की आवाज़ ना सुनाई दे। शैतानी देवतों को बच्चे अपने अर्पण करते थे। आपको मालूम अबॉर्शन यही है। दिस इज व्हाट अबॉर्शन इज टुडे। और इतना यहोवा को क्रोध दिलाया, यहाँ पे क्या लिखा है 11 वचन में, बिकॉज मनस्से किंग ऑफ जूडा हैथ डन दीज अबॉमिनेशन एंड हैथ डन विकेडली अबव ऑल द एमोराइट्स डिड। अमोरी बहुत गंदी कौम थे। प्रभु ने कहा था किससे? हमारे पुरखे इब्राहिम से, कि तेरी कौम 430 साल तक पराए देश में दुख भोगेगी, क्योंकि अमोरियों के पाप का घड़ा भी नहीं भरा। प्रभु ने बहुत बड़ा दंड दिया उस देश को। दुष्ट कौम थी एमोराइट्स, लेकिन यहाँ पे अमोरियों से भी बढ़ के गंदा काम उन्होंने किया, जिन्हें यहोवा ने चुना था अपने लिए, जिनको यहोवा ने अपने नियम दिए, विधियाँ दी, जिनको अपनी व्यवस्था दी, जिनके पास यहोवा ने अपने नबी भेजे, अपने दास भेजे, जिनको यहोवा ने पृथ्वी की कौमों से अलग किया, जिनको नबी परमेश्वर का कलाम सुनाते थे। परमेश्वर की न्यारी कौम ने इतने गंदे काम किए। ना तो उससे पहले किसी ने इतने बुरे काम किए, ना उसके बाद किसी ने। तो प्रभु क्या कहता है 12 वचन में, देयरफॉर thus says the Lord God of Israel, behold I am bringing such evil upon Jerusalem and Judah that whosoever heareth it both his ear shall tingle। मैं वो सजा देने जा रहा हूँ यरूशलेम को और यहूदा को, जो कोई सुनेगा वो हिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय बाद में आप। एक राजा ने पूरे इस्राएल की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। वन किंग, उसने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया कि लोग यहोवा से पथभ्रष्ट हो गए, और यहोवा ने मन बना लिया यहूदा को कैप्टिविटी में भेजने का। यहूदा भी बंधुआई में चला गया। पर आपको मालूम, मनस्से का पिता धर्मी बंदा है, यहोशाफाट। काश उसने यहोवा से 15 साल ना मांगे होते और ये पैदा ना हुआ होता और इज़राइल असीरी में ना जाता। परमेश्वर की सॉवरेन विल नहीं है ये। परमेश्वर की सॉवरेन विल को इंसान के फ्री विल, इंसान की फ्रीडम में सब कर रही है। पढ़ के देखें पूरा कलाम। दुनिया ऐसी नहीं होनी थी, ये ऐसा नहीं होना था जैसा हम पढ़ रहे हैं वचन में। तस्वीर कुछ और होनी थी। अपने जीवन पे गौर करें आप। मैं अपने जीवन पे गौर करता हूँ। मेरे जीवन के गलत फैसले अगर वो ना होते, अब जब मैं पीछे देखता हूँ, मेरा जीवन कुछ और होता। आपकी फ्रीडम टू मेक डिलिबरेट चॉइसेस, आपकी स्वतंत्र इच्छा से जो गलत निर्णय आप लेते हो, क्योंकि ये वचन आपकी हड्डियों में जो आपकी बोन मैरो है, एक्सक्यूज मी एक सेकंड जरा, जो हमारी बोन मैरो है, समझते हैं आप क्या लिखा परमेश्वर के कलाम में? परमेश्वर के कलाम में इब्रानियों 4:12 में लिखा है, आखिरी डेस्टिनेशन कलाम का मालूम क्या है? स्पिरिट को सोल को अलग करता है। ऐसे काटता है कलाम आके, बहुत तेज धार है कलाम की। सोल स्पिरिट को सेपरेट करता है। आपकी सोल के अंदर बहुत नॉइस है, बहुत शोर चल रहा है आपकी जान में। आपकी सोल में माइंड, विल, इमोशंस हैं। आपकी सोल के साथ ही आपका हार्ट कनेक्टेड है। तो सोल के अंदर जो कुछ आपने सीखा है, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज दुनिया की, इट्स ऑल लाइंग इन योर सोल। योर सोल इज हैवीली क्लटर्ड विद सो मेनी थिंग्स। Your mind, will and emotion, they reside in the soul. And your kardia, Greek word is kardia. And love is the Hebrew word. Your heart is connected to the soul. So since there is so much noise, since there is so much activity, since there is a buzz going on in your soul, you can't hear God in your soul. When the word of God will come, true word of God will separate your soul from the spirit. Two entities will be separate.
and then the word of God will pierce your inner organ. परमेश्वर का कलाम दो धारी तलवार से चोखा है, दो धारी तलवार नहीं, दो धारी तलवार से तेज है। आत्मा और जान को अलग करता है और गुदे गुदे को, आपके बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर, टिश्यूज, टेंडन, लिगामेंट्स, उनके बीच में से घूमता है खुदा का कलाम और बोन मैरो में जाके सेटल होता है। बोन मैरो जब आप खाते हो ना, बकरे का मीट खाते हो, हड्डी होती है, उसको ऐसे ऐसे करके बीच में से चूसते हो, वो बोन मैरो है। आपकी बोन मैरो कलाम के अंदर ये थी रोशनी, मशाल जो कुंवारियाँ लेके जा रही थी। ये अंदरूनी रोशनी है। मशाल तो बाहरी दिखाई है, बट एक मशाल आपके अंदर है। ये रोशनी कहाँ से आती है? अभिषेक से। मैंने आपको बताया 10 अध्याय यशाया का 27 वचन में कि योक विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। और अनॉइंटिंग के लिए वहाँ पे वर्ड मासा नहीं है, मासा जहाँ से मशियाक निकला है, वहाँ पे वर्ड है शिमेन, हिब्रू वर्ड, जिसका मतलब है फैटनेस ऑफ द ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, थिक ऑलिव ऑयल, एब्सोल्युटली प्योर अनअडल्टेटेड ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल दैट कम्स। ऑलिव को रखते हैं, बांधते हैं कपड़े में, एक स्टोन होता है मिल स्टोन टाइप, उसके बीच में डिप्रेशन होता है, उसमें से एक नाली निकलती है, उसके ऊपर एक हैवी स्टोन से मारते हैं, ऑलिव क्रश किए जाते हैं, उसमें से फ्रेश प्रेशस एनॉइंटिंग निकलती है। उसको क्रश किया गया, रियल ऑलिव को, अंगूरों की दाखलता को क्रश किया गया। पुरानी मज़हब की, पुराने धर्म की, पुरानी डिनोमिनेशन की वाइन स्किन में नहीं डाल सकते ये जिंदा कलाम। आपको वाइन स्किन नहीं चाहिए, हालेलुया, वरना वो फट जाएगी, फर्मेंटेशन होगी जब। तो ये प्रेशियस अनॉइंटिंग है, हालेलुया, जीसस की अनॉइंटिंग है। मेरी अपनी कोई अनॉइंटिंग नहीं है, समझ रहे हैं आप? मेरे ऊपर अनॉइंटिंग जीसस की अनॉइंटिंग है, हालेलुया। उसके अभिषेक में से हमारे ऊपर उंडेला गया है। मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग में पूरा ब्लूप्रिंट इधर डाल दिया, उसके टैबरनेकल का, जो तंबू बनाना था, सब कुछ इधर डाउनलोड कर दिया पल में। यहोवा की हजूरी में 1 सेकंड खड़े हो जाएंगे आप, 1 सेकंड में पूरी दुनिया की हिस्ट्री डाउनलोड कर देगा यहोवा। आप यहोवा के हजूर से निकल के आओगे, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे होंगे। आइंस्टाइन, रिचर्ड डॉकिंस, इन सब बड़े बड़े जो बंदे अपने आप को कहलाते हैं, इनकी विजडम पेल करेगी आपके आगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये तेरे ऊपर मैंने आत्मा डाला, उसमें से लेके मैंने ब्लैक स्मिथ के ऊपर डाला, जो लोहे का काम करेंगे, गोल्ड स्मिथ पे डाला, जो हैकल में सोने का काम करेंगे, जो लकड़ी का काम करेंगे, जो बीजाइल है, जो फलाना है, उनके ऊपर तेरे में से मैंने आत्मा डाल दिया है। तो ये मशियाक का मसा है, अंदर की रोशनी, जो हमें सही पथ पे चलाएगी, हालेलुया। सही डिसीजन, सही फैसले अपने जीवन में मैं कल आपको बता रहा था कि जो राजा यहोशाफाट है, गुड राजा है, लेकिन बैड लोगों से कंपनी रखता है। अगर आप स्पिरिचुअल कंपनी गलत रखेंगे, मैंने कल आपको बताया था, प्रभु के कलाम में लिखा है, डू नॉट इवन बिड देम गॉड स्पीड। उनको जय मसीह की भी मत बोलना, जो गलत शिक्षा लेकर आते हैं। बहुत रूड लगता है, लेकिन ये कलाम है, मैंने कल आपको बताया था। दूसरा यूहन्ना 1:10 में लिखा है कि अगर कोई गलत शिक्षा लेके आता है तुम्हारे घर में, डू नॉट बिड देम गॉड स्पीड, उनको ग्रीट नहीं करना, लिखा है। लेकिन वर्ड है, ही ग्रीक वर्ड है कारो, जिसका मतलब डू नॉट बी चीयरफुल टू देम। कारो का मतलब रिजॉइस करना उनके साथ, डू नॉट बी चीयरफुल टू देम। और इस वर्ड की रूट जो है वो है कैरिस का मतलब होता है ग्रेस। ग्रीक में, हिब्रू में खाना कहते हैं, खाना, जहाँ से हना वर्ड निकलता है, और ग्रीक में कैरिस कहते हैं, जहाँ से ग्रेस निकलती है। प्रभु कह रहा है, डू नॉट बी ग्रेशियस टू देम, जो गलत शिक्षा लेकर आते हैं। और इसकी रूट जो है, कैरिस की रूट है खारा, जिसका मतलब रिजॉइस, आनंदित मत होना। कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 13:6 कि अगापे जो है, चैरिटी जो है, करिस जो है, ग्रेस, डज नॉट रिजॉइस विद इनिक्विटी, डू नॉट रिजॉइस विद इनिक्विटी। समझ रहे हैं आप जो मैं सारी शिक्षा दे रहा हूं? इनिक्विटी, हार्ट, द चॉइसेस,
to make the choices, to make your independent decisions, freedom, free will, human heart, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. हालेलुया. तो मैं आपको क्या बता रहा था परमेश्वर के कलाम में से. हालेलुया. पढ़िए मेरे साथ दूसरा राजा 11 अध्याय जल्दी से. दूसरा राजा 11 अध्याय में आ जाइए. सेकंड किंग्स चैप्टर नंबर 11. देखिए ध्यान से. दूसरा राजा 11 अध्याय. दूसरा राजा 11 अध्याय. अब ध्यान से सुनिएगा. एंड वेन Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal. अथलाया कौन है? अहाब और इजाबेल की बेटी है. क्योंकि अहाब की दोस्ती थी यहोशाफाट के साथ. यहोशाफाट गुड राजा था, उसको अहाब के संग कोई दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने की यहोवा के वचन से बाहर जाकर. उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बेटे जहोराम ने किससे दोस्ती की? उसकी बेटी से की. उसकी बेटी का नाम है अथलाया, और उसकी बेटी ने उसके बेटे जहोराम से शादी की. मैंने आपको बताया किससे शादी की? जहोराम से. जब उसने जहोराम से शादी की तो उनकी औलाद पैदा हुई. 2 बेटे पैदा हुए, अहजाया और जहोआश या जोआश. तो अहजाया पहलौठा था, वो राज करने लगा. लेकिन जैसे वो बेटा मर गया, अथलाया का जो बेटा पैदा हुआ उसके पति से. उसका पति कौन है? उसका पति है जहोराम. जहोराम कौन है? यहोशाफाट का बेटा है. यहोशाफाट आसा का बेटा है. आसा अबीजा का बेटा है. अबीजा रहोबोआम का बेटा है. रहोबोआम सुलेमान का बेटा है. सुलेमान दाऊद का बेटा है. दाऊद के घराने से राजे आएंगे, ये यहोवा की भविष्यवाणी थी. दाऊद के घराने, यहूदा से सिर्फ. इसीलिए जो यहूदा था, यहूदा की बहू तमार, उसका पति मर गया. उसके ससुर यहूदा ने दूसरा अपना बेटा दे दिया. वो जब मर गया तो तीसरा उसने नहीं दिया, तो उसकी औलाद नहीं हुई तमार के. तो तमार ने क्या किया? तमार वेश्या बन के उसने अपने ससुर को सडूस किया, और ससुर से 2 औलादें पैदा हुई, जेरा एंड परेज. 2 बच्चे पैदा हुए. तो हम कहानी पढ़ते हैं अपने कल्चर में, इंडियन कल्चर में. हम सोचते हैं ये बहू कैसी है, अपने ससुर के साथ गंदा काम करती है, ये तो बहुत बदकार है, ये तो बहुत बुरी है. लेकिन यहोवा ने उस औरत की सराहना की. आपको मालूम क्यों की? क्योंकि यहोवा की भविष्यवाणी को उस औरत ने प्रोटेक्ट किया. यहूदा नहीं चाहता था यहूदा का सीड आगे जाए. यहोवा ने यहूदा के बीज के अंदर मसीह को छिपा के रखा था. आपको मालूम मसीह किसके अंदर छिपा था? मसीह यहूदा के बीज में था. लेकिन वो यहूदा का जो बीज था वो उसके तीसरे बेटे में से निकलना चाहिए था, तमार के थ्रू. लेकिन उसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तो वो बीज डायरेक्टली यहूदा से निकला. यहूदा की जो बहू तमार प्रेग्नेंट हुई, और तब जब उसने वो उसको अपनी ब्रेसलेट ले दी, रिंग दे दिया और स्टाफ दे दिया कस्टडी में, तो उसने पंचायत में जब बताया कि जिसकी ये चीज़ें हैं, तो यहूदा ने अपना पाप माना. यहूदा ने कहा मैं दुष्ट था, तू धर्मी औरत है. क्यों? क्योंकि उसने यहूदा के बीज को प्रिजर्व किया. वो प्रिजर्व होना था यहूदा के बेटे के थ्रू लेजिटिमेटली, लेकिन बहू ने ससुर के थ्रू किया, क्योंकि ससुर उस बीज को लाना नहीं चाहता था. आपको मालूम 2 बच्चे पैदा हुए, जेरा एंड परेज. परेज ब्रोक थ्रू, जैसी स्टोरी है बाइबल के अंदर, जबरदस्त कहानी है कि पहलौठे का हक दूसरा लेता है. एक आता है, वो अंदर चला जाता है, फिर दूसरा आता है. दैट्स अ सिमिलर काइंड स्टोरी. परेज से फराजीम निकले हैं. फरीसी फरेज से निकले हैं. जीसस भी फरीसियों की लिनेज में से है. फरीसियों की लिनेज के अंदर यहोवा का बीज भी है. फरीसियों की एक झूठी लाइन है जिसके अंदर सांप का बीज भी है. फिर किसी समय उस सीड के ऊपर हम बात करेंगे जो फरीसियों के अंदर है. तो उस औरत ने उस बीज को प्रिजर्व किया, क्योंकि फरेज में से जीसस क्राइस्ट निकला है आके. हालेलुया. तो मैंने बताया आपको कि हम अध्ययन कर रहे थे. क्या अध्ययन कर रहे थे?
कि अथल्या की माता इज़ाबेल और अहाब ने इज़राइल को यहोवा से दूर किया और उन्होंने कल्ट शुरू किया, एक कल्ट, शैतानी कल्ट नॉर्दर्न किंगडम में। उस कल्ट से ही क्रिसमस निकला है, जो 325 एडी को रोमन कैथोलिक चर्च ने जिसे सेलिब्रेट किया और इंस्टीट्यूट किया, क्राइस्ट मास, ये वहाँ से निकला है। फर्टिलिटी कल्ट है ये। तो क्या लिखा है वचन के अंदर? नॉर्दर्न किंगडम का पतन हो गया, अशूर की गुलामी में चले गए। सदर्न किंगडम का पतन कैसे हुआ? सदर्न किंगडम का पतन भी उसी वजह से हुआ है। वो जो गलत फेलोशिप की यहोशापात ने अहाब के साथ, अहाब की बेटी ने उसके बेटे ज़ोहराम के साथ, और वो ज़ोहराम की पत्नी बनी और उसका पति मर गया। उसके बाद उसका बेटा जो उसके पति से पैदा हुआ था, अहज़ाया, गद्दी पे बैठा, वो भी मर गया। तो उस औरत ने क्या किया? उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने दाऊद के ख़ानदान से जितने थे सारे मरवा दिए, सारे ताए चाचों में से जो भी थे, कनक्यूबाइन में से बच्चे थे, सब मरवा दिए। रॉयल सीड मरवा दिया, क्योंकि उसके अंदर शैतान का बीज है, वो रॉयल सीड से हेट करती है। लेकिन हुआ क्या? बट क्या लिखा है? जेहोशिबा द डॉटर ऑफ किंग जोराम की जो बहन है, जो उनकी बुआ है, सिस्टर ऑफ अहज़ाया, अहज़ाया की जो कौन लगती है? बहन लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये दूसरी लिनज से है। टुक जोआश द सन ऑफ अहज़ाया एंड स्टोल हिम फ्रॉम अमंग किंग्स सन विच वर स्लेन एंड दे हिड हिम even him and his nurse in the bed chamber from Athaliah so that he was not slain। एक बच्चा बच गया। वो कौन है? कौन है वो बच्चा? जोआश। जेहोआश करके भी इसको लिखा गया है, लेकिन उसका नाम है जोआश। जेहोआश करके भी इसको लिखा गया है इस बच्चे को, लेकिन ये जोआश इसका नाम। वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसके बीज के अंदर मसीह छिपा हुआ है। और क्या लिखा है? एंड ही वॉज विद हर हिड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड 6 years। 6 साल तक उसे कहाँ छिपा के रखा गया है? यहोवा परमेश्वर के घर में। एंड अथलाया डिड रेन ओवर द लैंड। वो रानी बन गई, वुमन किंग थी वो। सारे यहोवा के सच्चे नबियों को घात करवा दिया उसने, मरवा दिया सबको, और शैतानों की पूजा शुरू करवा दी इज़राइल में। एक राजा की गलती थी, वो इस पाप को सदर्न किंगडम में ले आया। ये नॉर्दर्न किंगडम का पाप था। इसी पाप की वजह से असीरी आती है, आप गुलामी में चले जाते हो। आपको मालूम, मसीहों के संग भी यही हो रहा है, यही सेम चीज़ है। आप असीरी में जाते हो, स्पिरिचुअल असीरी में, पाप की गुलामी में, पाप की असीरी में। यहोवा की उपस्थिति से दूर जाना ही, जब यहोवा की हुजूरी नहीं आपके ऊपर, आप कैप्टिविटी में हो। आप मिस्र में हो, आप बेबीलोन में हो, आप अशूर में हो, आप ग्रीस में हो, आप मीड्स एंड पर्शियंस की गुलामी में हो। आप गुलाम हो किनके? उन वॉचर के अधीन हो। 70 वॉचर जो पृथ्वी की कौमों पे राज कर रहे हैं, आप उनकी डोमेन के नीचे आ जाते हो, यहोवा की डोमेन से निकल जाते हो आप, जब आप पाप और बदकारी में जाते हो। हालेलुया। तो यहोवा ने एक बीज बचा के रखा है, और ये इस औरत का बीज, इस औरत से निकला बीज नहीं है ये। हालेलुया। तो आगे मैं भी आपको बताता हूँ। 4 वचन में लिखा है, एंड 7th year ऑफ जेहोआदा। ये कौन है? याजक है। ये बहुत गुड याजक है, धर्मी याजक है, जेहोआदा। सेंट एंड फेच्ड द रूलर्स over 100 with the captains and the guard and brought them to him into the house of the Lord and made covenant with them and took an oath of them in the house of the Lord and issued them the king's son। राजा का बेटा वहाँ छिपा हुआ था, छोटा बच्चा साल का। अब कितने का हो रहा है? 6-7 साल का हो रहा है। 7th year 7 साल का हो रहा है। तो क्या लिखा है? and he commanded them saying, this is the thing that ye shall do, a third part of you that enter into the Sabbath shall even be keepers of the watch of king's house, and a third part shall be at the gates of Sur, and the third part at the gate behind the guard. Ye shall keep the watch of the house, that it shall not be broken down, and 2 parts of
2 parts of all you that go forth on the Sabbath, even they shall keep the watch over the house of the Lord about the king, and ye shall compass the king round about, every man with his weapon in his hand, that he that cometh within the rangers, let him be slain, and ye be with the king as he goeth out and as he cometh in. राजा, छोटा राजा जोआश, उसकी रक्षा की जाए ताकि कोई उसे हाथ न लगा पाए। उन्होंने वाचा बांधी एक दूसरे के साथ, और पढ़िएगा पूरा ये कि उसकी रक्षा की गई पूरी तरह से। अब पढ़ें यहाँ पे क्या लिखा है, इसका हम 10 वचन पढ़ते हैं। एंड द कैप्टन्स ओवर द 100 डिड एज द priest gave King David spear and the shield that they were in the temple of the Lord, and the guard stood every man with his weapon in his hand round about of the king, from the right corner of the temple to the left corner of the temple, along with altar and the temple, and he brought forth king's son. तब वो राजा के बेटे को लेकर आया और उसने उसके सर के ऊपर मुकुट रखा, और राजा के बेटे का, कौन है, जोआश का, राज्याभिषेक कर दिया। लिखा है मेड हिम किंग एंड अनॉइंटेड हिम, उसे मसा कर दिया और राजा बना दिया। एंड दे क्लैप देयर हैंड्स एंड सेड गॉड सेव द किंग। अथलिया दुष्ट औरत राजा बनी है, वुमन क्वीन है, वुमन किंग है, लेकिन एक धर्मी याजक ने इस 6 साल छिपा के रखा, अब उसे राजा बना दिया। अब देखें, एंड व्हेन अथलाया हर्ड द नॉइस ऑफ द गार्ड एंड द पीपल, शी केम टू द पीपल इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, एंड व्हेन शी लुक्ड, behold the king stood by the pillar as the manner was, and the princes and the trumpeters by the king, and the people of the land rejoiced and blew the trumpets. And Athaliah rent her clothes and cried, treason, treason. देखिए कौन कह रही है treason, treason? वो औरत, उसने देखा कि जोआश को राजा बना दिया। तो लिखा, Jehoiada the priest commanded the captain of the 100 and the officers of the host, said unto them, have her forth with the ranges, and him that followeth her, kill her with the sword, for the priest had said, let her not be slain in the house of the Lord. उसको बाहर ले जाके मार दिया गया, हालेलुया, अथलिया को। और इसका 21 वचन मैं पढ़ता हूँ। एंड 7 years was old Yahuash when he began to reign, 7 साल का राज करने लगा। तो उसकी माता जो थी, अब पढ़िए आप 12 अध्याय में आइए, सुनिए ध्यान से। इन द 7th year ऑफ जोआश, ये जोआश जो है, ये जोआश एक ही है शब्द, उसकी शॉर्ट फॉर्म जोआश है, जेहोआश उसकी फुल फॉर्म है। began to reign, and 40 years reigned he in Jerusalem, and his mother's name was Gibeah of Beersheba. इसका पिता तो वही है जिससे अथलिया ने शादी की है, जेहोराम, जो यहोशाफाट का बेटा है, लेकिन इसकी माँ ये नहीं है अथलिया। यहोवा ने इस गंदी औरत के क्रोमोसोम को अपने वंश में नहीं रखना था, वो सैटेनिक ब्लड लाइन है। इसकी माता का नाम है जिबिया ऑफ बेरशिबा। और जेहोआश डिड दैट विच वॉज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज वेयर इन जेहोआडा द प्रीस्ट इंस्ट्रक्टेड हिम। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये जो राजा है जोआश, इसके पीछे एक धर्मी बंदा है जिसका नाम है जेहोआडा, यहोवा का सच्चा याजक है। जब तक वो सच्चा यहोवा का याजक इसके जीवन में रहा, जोआश के, ये यहोवा के मार्गों पे चलता रहा। लेकिन जैसे वो मर गया, अब सुनिए यहाँ पे, जो हाई प्रीस्ट उसे बोलता था, सच्चा कलाम वो करता था। बट द हाई प्लेसेस वर नॉट टेकन अवे, द पीपल स्टिल सेक्रीफाइस्ड एंड बर्न्ड इंसेंस ऑन हाई प्लेसेस। मुकम्मल तौर पे सब कुछ बदला नहीं, समझते हैं आप? रेडिकल शिफ्ट, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई। तो आगे पढ़ें। एंड जेहोआश सेड टू द प्रीस्ट, ऑल द मनी ऑफ द डेडिकेटेड थिंग दैट इज ब्रॉट इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, इवन द मनी of every one that passeth account, the money that every man is set at, and all the money that cometh into man's heart to bring into the house of the Lord, let the priest take it to them, every man of his acquaintance, and let them repair the breaches of the house, whoever any breach be found. breaches को सही किया जाए, यहोवा के भवन को
सब कुछ सेट कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस टू, हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए इसके 3-4 चैप्टर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, देखिए कैसे सिचुएशन चेंज होती है। जस्ट 3-4 चैप्टर भी मूव लिटिल फर्दर अप। हालेलुया, आप आ जाएं, अब पढ़ेंगे हम 17 चैप्टर, और 17 चैप्टर इसके 7 वर्स से हम पढ़ते हैं, 5th से पढ़ते हैं, 5th वर्स से, 5th से पढ़ते हैं। चलो मैं 3rd से पहले पढ़ता हूँ। Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hosea became his servant and gave his presents. And the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers. So the king of Egypt brought no presents to the king of Assyria, and he had done year by year. And the king of Assyria shut him up and bound him in prison. अब देखिए कैसे पतन होना शुरू होता है। ये जो जोआश राजा है, ये क्या करता है, एकदम से बदल जाता है, बुरा हो जाता है। जैसे ही वो प्रीस्ट की डेथ होती है जेहोआडा की, इसका जीवन बदलता है। मैं अभी आपको क्रॉनिकल्स में से थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्लीज़ टर्न ओवर टू क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स में चलिए, दूसरा इतिहास। क्रॉनिकल्स में आपको पैरेलल हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन आपको कुछ और वहाँ पे मिलेगा। हालेलुया, 2 क्रॉनिकल्स में आ जाए हम, 22 चैप्टर में चलिए, 22, 2 क्रॉनिकल्स 22, और उसकी 10th मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कैसे थोड़ा शॉर्ट करूँ। 2 Chronicles chapter 22 verse number 10. But Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead. She arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah. But Jehoshaphat, the daughter of the king, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabat, the daughter of the king Jehoram, and the wife of Jehoiada the priest, for she was the sister of Ahaziah. Ahaziah की बहन है ये, उसकी बुआ लगती है। और जेहोआडा जो प्रीस्ट है, उसकी ये पत्नी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। hid him from Athaliah so that she slew him not. And he was with them hid in the house of God for 6 years, and Athaliah reigned over the land. हालेलुया। अब देखें यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा, 23rd चैप्टर आप खुद पढ़िएगा, मैं ये आपके लिए नहीं पढ़ूँगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसकी पूरी दोबारा कॉरोनेशन की जाती है, राजा बना दिया जाता है। और 24th चैप्टर में अगर आप देखेंगे, जोआश टेंपल को रिपेयर करता है, जो टेंपल बनी थी यहोवा की, क्योंकि उससे पहले जो राजे थे उन्होंने बहुत बदकारी की, टेंपल को लॉक लगा दिया था, बंद थी, अंदर बहुत गंदगी थी, उसको रिपेयर किया जाता है और एक रिवाइवल आता है, खुदा के कलाम की किताब मिलती है। अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ यहाँ पे इसका 15 वचन में, 24 का 15। बट जेहोआडा वैक्स ओल्ड, ये जो धर्मी याजक है बूढ़ा हो जाता है, एंड फुल ऑफ डेज व्हेन ही डाइड, 130 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड, एंड दे बैरिड हिम, उसको बैरी कर दिया गया। अब देखिए जोआश जो गुड किंग है वो क्या करता है, 17 वचन। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ जेहोआडा केम द प्रिंसेस ऑफ जूडा and made obeisance to the king, and the king hearkened unto them, and they left the house of the Lord God of their father, and served groves and idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for their trespass.
फिर वो जो प्रिंस सारे इकट्ठे होके क्या करने लगे, शैतानी पूजा। ये पता नहीं कौन सी ट्रेजिडी थी इज़राइल के साथ, कैसे वो बार बार इतनी भयंकर सजा, इतना भयंकर कैप्टिविटी, परमेश्वर की लानत, कर्सेज उनके ऊपर आते देखने के बाद पराये देश के राजे उनको मार देते थे, खदेड़ देते थे, उसके बाद वो पाप में गिरते थे। येट ही सेंट प्रॉफिट्स टू देम टू ब्रिंग देम अगेन अनटू द house of the Lord, unto the Lord. They testified against them, but they would not give ear. And the Spirit of God came upon Zechariah, son of Jehoiada. खुदा का रूह आया जकराया के ऊपर। ये किसका बेटा है? Son of Jehoiada. The priest which stood above the temple, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, why transgress ye the commandments of the Lord, and he cannot prosper, that he cannot prosper, because he have forsaken the Lord, he hath also forsaken you. ये जोआश के राज्य में हो रहा है। एकदम से परवर्ट हो गए, एकदम से बैकस्लाइड हो गए, एकदम से यहोवा की ओर पीठ फेरी और गंदे काम करने लगे। और जेहोवादा प्रीस्ट तो मर गया, उसका बेटे के ऊपर खुदा का रूह उतरता और वो नबूवत करता जकरिया। एंड दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड स्टोन्ड हिम विद स्टोन्स एट द कमांडमेंट ऑफ द किंग इन द कोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। इतना दुष्ट हो गया जोआश राजा, उसने रॉयल डिक्री दी कि यहोवा परमेश्वर के आंगनों में ही इसे पत्थर मार मार के क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। और उन्हें पत्थर मार मार के मार दिया जाता है। और 22 वचन पढ़ें। Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him. उसे पिता कहा गया, उस महायाजक को जिसने पिता की तरह इसे पाला, पोसा, बचा के रखा, उसको राज्याभिषेक किया, इसके संग ढाल बन के खड़ा, उसे यहोवा के मार्ग बताए, यहोवा का कलाम सिखाया, यहोवा से रिश्ता रखना सिखाया। इसने उसके बेटे को जो नबी था, जिसने इनकी बदकारी के खिलाफ नबूवत की, पत्थर मार मार के यहोवा की हैकल में मार दिया। पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का आप 35 वचन। यीशु मसीह कहते हैं कि जकरिया नबी जिसको आपने ऑल्टर के बीच में मारा, तुम मुझे भी मारोगे, सब नबियों का ब्लड तुम्हारे ऊपर आएगा। मत्ती 23 का 35 पढ़िए। उनके ऊपर नबियों का ब्लड आया, सदर्न और नॉर्थन किंगडम के ऊपर। उन्होंने सच्चे नबियों की बातें नहीं सुनी, झूठे नबियों की बातें सुनी। आज कलीसिया का भी यही हाल है। आप जाते हो पॉपुलर पास्टर्स के पीछे, कितनी भीड़ है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है उसके पास, वो प्रॉस्पेरिटी सिखाते हैं आपको। आपको ये नहीं मालूम प्रॉस्पेरिटी का मतलब प्रेजेंस ऑफ जीसस है। अगर जीसस की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, यू आर ऑलरेडी प्रॉस्परस। प्रॉस्पेरिटी का अलग पैकेज मत लो, ये कलाम ही बता रहा हूँ आपको, इसे खुद भी पढ़ सकते हो आप, समझ रहे हो? आप पढ़ो इसको, इसके अंदर क्या बता रहा है ये कलाम। ये दौलत का नशा बहुत बुरा नशा है, सफलता का नशा बहुत बुरा नशा है। यहोवा के चरणों में टूट कर रहना ही भलाई है हमारे लिए। हालेलुया। पतन हो गया इनका, क्योंकि इन्होंने नबियों को, सच्चे नबियों को, उनका मुंह बंद नहीं होता, वो बोलते हैं, सच्चे नबियों को घात किया। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 23 के 35 में कि उनका ब्लड जकरिया से लेके मेरे को भी यहीं तुम मारोगे यरूशलेम में। ये हो नहीं सकता कि तुम यरूशलेम के बाहर मुझे मारो। टेम्पल माउंट पे मारा उन्होंने यीशु मसीह को भी। सच्चे नबियों का यही असर होता है। हालेलुया। जोआश भूल गया और वो बदकारी अहाब की और इज़ाबेल की सदर्न किंगडम में भी आ गई और उनका भी पतन हो गया। गलत डिसीजंस उनके पुरखों ने लिए। आपके गलत फैसले आपकी आने वाली जनरेशन को प्रभावित करेंगे, परमेश्वर के कलाम को। हालेलुया। प्रोवर्ब 4:23 में लिखा है, गार्ड योर हार्ट अबव ऑल थिंग्स बिकॉज आउट ऑफ योर हार्ट फ्लो द इश्यूज ऑफ लाइफ। ये हार्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पिता का ओरिजिनल सीड और आपकी माता के ओरिजिनल ऑटोजोम्स और क्रोमोसोम्स हैं, उससे हार्ट बना है। इसके संग आपकी फ्री विल है, इसके संग आपकी डेस्टिनी है। यहोवा तो कहता है मैंने डेस्टिनी बनाई है तेरे लिए, खूबसूरत है। जैसे यीशु मसीह के लिए स्क्रोल उतरा हेवन से, वैसे तेरे लिए भी स्क्रोल उतरेगा। वो स्क्रोल जब तू देखेगा, मैं तुझे खाने के लिए दूंगा, तब तू नबूवत करेगा। सच्चा नबी के पास स्क्रोल उतरता है स्वर्ग से, तब वो नबूवत करता है।
झूठे नबी ऐसे बोलते हैं, ये देने जा रहा है तुझे, वो देने जा रहा है तुझे, ये मिलने जा रहा है तुझे, वो होने जा रहा है, ये साल ये होने, वो अपने आप से फट्टे मारते हैं। सच्चे नबी के पास स्क्रोल आता है यहोवा का। आइए सीखें कि कैसे आपकी लिबर्टी टू मेक चॉइसेस आपकी डेस्टिनी बनाती है। आपके जो बच्चे अभी पैदा नहीं, आपके पोतों के पोतों के पोते जो अभी पैदा नहीं हुए, उनको भी आप इम्पैक्ट कर रहे हो अपने जीवन के द्वारा। यहोवा के भय की आत्मा को मांगे। प्रभु से कहें मुझे स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड दीजिए, प्रभु मुझे विजडम दी, ये चीज़ें मांगें। प्रभु से कहें कि मेरे अंदर प्रभु वो डिवाइन वर्चू पैदा हों जो पतरस लिखता है, मेरे कैरेक्टर में वो वर्चू पैदा हों, मैं मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। ये मांगे प्रभु से। आइए आंखें बंद करें। लॉर्ड आई ब्लेस योर पीपल, मे योर हैंड बी अपॉन योर पीपल लॉर्ड गॉड, आई कवर देम ऑल अंडर द ब्लड ऑफ द लैम्ब, आई प्रे दैट दे विल मेक वाइज decisions that will reflect wisdom, that will reflect the spirit of the fear of the Lord that is resident in their hearts. Hallelujah. Open up the deep things of your word to your people. Bless them, I pray, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah.